ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੈਂਸਿਸ ਬਾਰੇ। ਲੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਲੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਸੇਮ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਮਿਰਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਈਟ ਆਫ ਇਮੇਜ ਓਵਰ ਹਾਈਟ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ ਜੋ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਮੇਜ ਡਿਸਟੈਂਸ ਓਵਰ ਆਬਜੈਕਟ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਾਂਗੀ। ਸੋ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਅ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ has focal length of 15 centimeter at what distance should the object from the lens be placed so that it forms an image at 10 centimeter from the lens. So also find the magnification. Also find the magnification. ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਹੈਜ਼ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਆਫ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਲੈਂਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ। ਸੋ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨਸ। ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਐਟ ਵਾਟ ਡਿਸਟੈਂਸ should the object from the lens be placed. So ਆਪਾਂ ਕੀ find out ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, object distance find out ਕਰਨਾ ਹੈ। be placed so that it forms an image at 10 centimeter from the lens. So image ਜੋ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, at 10 centimeter from the lens. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਨਕੇਵ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕੇਸਿਸ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਚੁਅਲ ਔਰ ਇਰੈਕਟ ਇਮੇਜ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। then also find the magnification. So ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ focal length given ਹੈ। focal length ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ small f ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ because concave lens given ਹੈ। ਸੋ concave lens ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ focal length ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ negative -15 centimeter। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ given ਹੈ image is formed at 10 centimeter from the lens. So image distance image distance v। ਸੋ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੋ ਕੇਸਿਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਵਰਚੁਅਲ ਔਰ ਇਰੈਕਟ ਇਮੇਜ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਵਰਚੁਅਲ ਇਰੈਕਟ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਮੇਜ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੋ ਇਮੇਜ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਮੇਜ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਦੀ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਸੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲਈ ਹੈ, ਇਮੇਜ ਜੋ ਹੈ ਵਰਚੁਅਲ ਇਰੈਕਟ ਤਾਂ ਹੈ ਬਟ ਜੋ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੇਮ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਜਰ ਕਰਾਂਗੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਆਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੈਫਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਵੱਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਰੋਮ ਦਾ ਆਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ, ਦੈਨ ਆਪਣਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਔਰ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਬਾਈ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਲੈਂਸ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਲੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਲੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, लेंस फॉर्मूला है 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/r
f। सो ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ u ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ u ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਧਰ ਕੀ ਆएगा 1/v, ਇਹ पॉजिटिव सी दूसरी साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा, और सिमिलरली जो -1/u है दूसरी साइड जाके प्लस कन्वर्ट हो जाएगा। सो 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। ਹੁਣ ਆਪਾਂ वैल्यू सबस्टिट्यूट करांगे v दी और f दी। सो 1/u इज इक्वल टू 1/v दी वैल्यू है -10, देन माइनस साइन 1 ओवर f दी वैल्यू है -15, सो 1/u इज इक्वल टू, सो नेगेटिव साइन ऊपर भी लगा लो, मतलब मीनस कि डिनोमीनेटर विच नेगेटिव साइन होवे तो ਇਹਦਾ सेम ही मतलब है कि नेगेटिव साइन ਆਪਾਂ ऊपर ही यूज़ कर सकते हैं। सो -1/10, और ਇੱਥੇ नेगेटिव एंड नेगेटिव की होएगा पॉजिटिव 1/15। दिस इंप्लाइज, सो ਇਹਦਾ मतलब है कि ਆਪਾਂ इस इक्वेशन ਨੂੰ इस तरह भी लिख सकते हैं 1/u इज इक्वल टू, नीचे अगर ਹੁਣ मैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ मल्टीप्लाई करा दैन मेरे को ये आएगा 15 × 10 इज 150। सो सेम वही मैथड जो मैं उस दिन गल की सी पिछले लेक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 10 ਨੂੰ 150 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਦੈਨ ਕੀ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 15, ਦੈਨ 15 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਊਮੀਰੇਟਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ 15 ਨੂੰ -1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਇਆ -15, ਦੈਨ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ, ਅਗੇਨ ਹੁਣ 15 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ 150 ਦੇ ਨਾਲ, ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ 10 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਊਮੀਰੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 10। सो 1/u ਦੀ वैल्यू आ रही है अपने कोल -15 + 10, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ -5 ओवर 150। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇਹਦੀ ਕੈਂਸਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 5 3 = 15, 0 ਐਸ ਸੱਚ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ u ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ। सो दिस इंप्लाइज u इज इक्वल टू, नेगेटिव साइन एज सच रहेगा नेगेटिव -30, ਨਾਲ ਆਪਾਂ यूनिट्स मेंशन करांगे बिकॉज ਆਪਾਂ ਨੂੰ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ सेंटीमीटर्स गिवन है। सो एंड पे ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ यूनिट लिख रहे हैं सेंटीमीटर। सो इस क्वेश्चन ਦਾ जवाब आ गया एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड। सो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ डिस्टेंस ਤੇ ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा 30 सेंटीमीटर ਤੇ। नेगेटिव ਦਾ ਕੀ मतलब है इन फ्रंट ऑफ द लेंस। सो ऑब्जेक्ट should be placed at 30 centimeter in front of the lens, या फिर at the left side of the lens। हुन इस तो बाद क्वेश्चन सी also find the magnification। आप मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, मैग्निफिकेशन स्मॉल m इज इक्वल टू, फॉर्मूला है इमेज ਦੀ ਹਾਈਟ ਆਫ ਇਮੇਜ ਓਵਰ ਹਾਈਟ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਇਮੇਜ ਡਿਸਟੈਂਸ ਓਵਰ ਆਬਜੈਕਟ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਸੋ ਇਮੇਜ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ -10, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका की है खुद कैलकुलेट किया है -30। सो नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव, या फिर कैंसिल आउट कर दो, 0 एंड 0 कैंसिल। सो मैग्निफिकेशन आ रही है 1/3 या फिर 0.33। इससे जानते होंगे कि मैं किस तरह डिवाइड करनी है, बिकॉज अगर आप पहले की है पॉइंट लगाना पड़ेगा, बिकॉज की है 3 के टेबल के ऊपर 1 नहीं आ रहा। सो पॉइंट लगा के 0, देन 3 3 = 9, देन अगेन 1, एक और 0 कैरी, देन 3 3 = 9। सो अप टू सो ऑन अपने को वैल्यू कितना आती रहेगी 0.333। सो आप सिर्फ 2 डिजिट्स तक इनू की है मेनटेन कर रहे हैं। सो मैग्निफिकेशन आई है अपने को 1/3 या फिर 0.33। और मैग्निफिकेशन का जो साइन आया है वो की है पॉजिटिव। सो पॉजिटिव साइन होने का की मतलब है इमेज इज, जो भी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आती है तो आप बोलते हैं इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। और एक चीज़ आप होर इथों की है दस सकते हाँ 1/3 का की मतलब है मैग्निफिकेशन इज 1/3। 1/3 मतलब कि जो इमेज का साइज है वो की है
1/3 गुणा है एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਮੇਜ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 0.33, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ 1 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੈਗਨੀਫਿकेशन आ रही है दैट मीन्स इमेज साइज ज़्यादा आएगा एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट, और अगर 0 तो नीचे सो 0 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आ रही है देन इधर की मतलब है इमेज की है छोटी है। सो आप लिखेंगे इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड ऑल्सो डिमिनिश्ड इन साइज या एज सच ऑल्सो डिमिनिश्ड। सो अंडरस्टूड ही है कि डिमिनिश्ड मतलब साइज ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਛੋਟਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। सो ਆਪਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਲੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅ 2.0 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਟਾਲ ਆਬਜੈਕਟ, ਟਾਲ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 2.0 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਗਿਵਨ ਹੈ कि ऑब्जेक्ट 2.0 सेंटीमीटर की है, ये हाइट है, इतना ऊंचा है वो, इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। बिकॉज पिछले न्यूमेरिकल दे विच आपां कनकेव की गल की, कनकेव दे विच फोकल लेंथ आपां की लैने हाँ बाय कन्वेंशन दैट इज नेगेटिव, लेकिन कन्वेक्स लेंस के केस दे विच की है फोकल लेंथ आपां लवांगे पॉजिटिव। सो ये चीज़ ख्याल रखांगे आपां। उस तो बाद है द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस that is 15 centimeter। so अपन object distance given है means u the value given है, and find the nature, position and size of image, also find the magnification, also find its magnification। so ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ image ਦੀ position find out ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਜੋ given ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਤਾਰ ਲੈਣੇ ਹਾਂ। 2.0 centimeter एक ही अपने कुल height of object ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ h ਦੇ ਨਾਲ denote ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗਿਵਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2.0 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਸ। ਦੈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ small f is 10 centimeter। ਸੋ ਨਾਲ ਕੀ ਆਏਗਾ ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ, ਬਿਕੋਜ਼ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਇਜ਼ प्लस। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਈਏ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ कि ऑब्जेक्ट हमेशा आप परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस प्लेस करते हैं और ऊपर वाल होता है। सो दैट इज़ वाई जो ये मेजरमेंट है ये भी की है पॉजिटिव है। देन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस इज 15 सेंटीमीटर। सो अपन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी गिवन है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मीन्स स्मॉल u 15 सेंटीमीटर। और ये तो अपन पता ही है कि कोई भी लेंस होवे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की है, कोई लेंस या कोई मिरर भी होवे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा की लवांगे नेगेटिव लवांगे, बिकॉज ਆਪਾਂ हमेशा लेफ्ट साइड से प्लेस करते हैं ऑब्जेक्ट ਨੂੰ। सो ये आएगा नेगेटिव। सो इस तो बाद सेम उसी तरह यूजिंग लेंस फॉर्मूला। सो लेंस फॉर्मूला की है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सो आप कैलकुलेट की करना है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ v। सो इस क्वांटिटी ਨੂੰ एक साइड रखांगे 1/v इज इक्वल टू 1/f। नेगेटिव है इधर, दूसरी साइड जाके की होएगा पॉजिटिव 1/u। सो दिस implies 1/v कैन बी रिटन इक्वल टू, ਹੁਣ ਆਪਾਂ वैल्यूज पुट करिए 1/f ਦੀ वैल्यू कितनी है +10, देन अगेन प्लस साइन 1/u दी वैल्यू कितनी है -15। सो अपने को 1/v इक्वल टू 1/10। सो ये नेगेटिव साइन मैं इतने यूज़ कर रही हूँ। सो प्लस माइनस इज माइनस 1/15। सो इन्हों आप इस तरह भी लिख सकते हैं 1/v इज इक्वल टू, नाउ अगेन सेम चीज़ ही है जो आप पिछली न्यूमेरिकल विच भी किया 15 और 10। सो मल्टीप्लाई करने से की आएगा 150। सो ये सिंपलेस्ट तरीका है एलसीएम सॉल्व करने का। उस तो बाद 10 ਨੂੰ डिवाइड किया 150 ਦੇ ਨਾਲ, 15 ਨੂੰ मल्टीप्लाई किया ਇਹਦੇ न्यूमरेटर ਦੇ ਨਾਲ। सो 15 × 1 इज 15। देन माइनस साइन। उस तो बाद 15 ਨੂੰ डिवाइड किया 150 ਦੇ ਨਾਲ 10 × 1 अगेन
सो अपने कोल 1/v दी वैल्यू आ गई. 15 minus 10 is 5/1. 50 और आफ्टर कैंसलिंग 5 1s 5, 5 3s 15, 5 0s 0 और रेसिप्रोकल लेंथ तो बाद अपने कोल इमेज डिस्टेंस कितना आ रहा है विद प्लस साइन 30 और अगेन चेकिंग द यूनिट्स की है सेंटीमीटर्स विच जा रहे हैं सारा क्वेश्चन. सो इत्थे भी की आएगा सेंटीमीटर्स. सो तो आप की कंक्लूड किया पोजीशन ऑफ इमेज की है इमेज इज लोकेटेड ऑन द राइट साइड बिकॉज आपने कोल की है प्लस साइन आया और किन्ने डिस्टेंस के ऊपर लोकेटेड है 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर लोकेटेड है. नैक्सट उन्होंने गल की फाइंड द नेचर पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज. सो ये आपको एक साइज भी कैलकुलेट करना है प्लस मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करनी है. सो आप पहले मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लिखिए. मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला की है एच डैश की है साइज ऑफ इमेज ओवर एच साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और ये जो होल फॉर्मूला है वो भी मैं नाल ही लिख रही हूँ वो है इमेज डिस्टेंस ओवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. सो एच डैश आप फाइंड आउट करनी है साइज ऑफ इमेज. एच की है आपको क्वेश्चन के गिवन है. सो इत्थे मैं वैल्यू सबस्टिट्यूट करने जा रही हूँ एच डैश एज सच. एच की वैल्यू मैं पुट कर रही हूँ प्लस 2.0 इक्वल टू इधर मैं v और u दी वैल्यूज पुट कर रही हूँ ताकि आप एच डैश ਨੂੰ कैलकुलेट कर पाइए बिकॉज अजे मैग्नीफिकेशन दी आपको कोई भी मतलब यदी वैल्यू अपने को नहीं है. अपने को v और u दोनों की वैल्यू है और h की वैल्यू है. सो तिना यूज़ करके आप एच डैश कैलकुलेट कर सकते हैं. v की वैल्यू अपने को आई प्लस 30 ओवर u की वैल्यू माइनस 15. सो अगर नाल यूनिट्स भी मैंशन करना चाहो सेंटीमीटर और ए भी की है सेंटीमीटर्स दे विच है. सो एंड ते की होएगा यूनिट्स तां इधर वाली साइड कैंसल आउट हो जाएंगे और एच डैश कैलकुलेट करने के लिए जो ये वैल्यू है इन्हों भी दूसरी साइड लेके जावांगे. सो अपने कोल की आएगा प्लस 30 ओवर माइनस 15 और इधर जो चीज़ डिवाइड हो रही है इक्वल टू द दूसरी साइड जाके की होएगी मल्टीप्लाई. सो इतने मल्टीप्लाई करके मैं लिख रही हाँ प्लस 2.0 सेंटीमीटर्स. सो 2 सेंटीमीटर्स इतने कैंसिल हो गए लेकिन फिर भी अपने कुल की है आंसर दे विच 1 सेंटीमीटर आएगा बिकॉज आप की है एक मेजरमेंट ले रहे हैं मीनस आप हाइट कैलकुलेट कर रहे हैं और वो सेंटीमीटर का आना की है ज़रूरी है. सो आप हम कैंसलिंग करिए. सो प्लस प्लस तो ऐसा ही है. सो एक नेगेटिव होने करके की अपना आंसर की आएगा नेगेटिव दे विच नेगेटिव. बाकी कैंसलिंग की है यदा पॉइंट आप हटा सकते हैं. पॉइंट हटाते 0 नीचे या फिर सिंपली देन 15 2s 30. सो अपने को आंसर विच की आ रहा है प्लस माइनस माइनस अगेन माइनस प्लस माइनस देन 2 इंटू 2 4.0 बिकॉज आपको क्वेश्चन दे जिस फॉर्म दे हाइट गिवन है ऑब्जेक्ट की उसी फॉर्म दे आप हाइट लिख रहे हैं इमेज दी इन सेंटीमीटर्स. सो अपने को हाइट ऑफ इमेज की आई -4.0 सेंटीमीटर. हम इतने माइनस होने का की मतलब है माइनस का मतलब है कि जो इमेज है वो प्रिंसीपल एक्सिस के नीचे वाल बन रही है. इतने अपने को पॉजिटिव हाइट सी दैट मीनस प्रिंसीपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट सी लेकिन हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव आने का की मतलब है जो इमेज है नीचे बन रही है और उसकी हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर. एक चीज़ रह गई वो है मैग्नीफिकेशन. सो यही फॉर्मूला यूज़ करके आप मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करांगे. मैग्नीफिकेशन अगर मैं यूज़ करा कोई भी कर सकते हैं v ओवर u. सो v की वैल्यू कितनी सी v वॉज प्लस 30 और u माइनस 15. सो प्लस माइनस माइनस 15 2s 30. और एक चीज़ का ध्यान रखना है सेंटीमीटर ओवर सेंटीमीटर वो आपस कैंसल आउट होंगे. सो मैग्नीफिकेशन दे विच गलती नाल भी आपा की है कोई यूनिट नहीं मैंशन करना. सो मैग्नीफिकेशन की है इट इज़ हैविंग नो यूनिट. सो अपने को तीनों आंसर्स आ चुके हैं. फर्स्ट है पोजीशन ऑफ इमेज ओके आई टू द राइट साइड ऑफ लेंस एट डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर. फिर आप साइज़ की गल की साइज़ की आ रहा है अपने को 4 सेंटीमीटर. सो इमेज द हाइट है इमेज की हाइट है 4 सेंटीमीटर और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे लाई कर रही है. मैग्नीफिकेशन -2 माइनस का होने की मतलब है इमेज की है रियल एंड इन्वर्टेड.
ਸੋ ਰੀਅਲ ਐਂਡ ਇਨਵਰਟਿਡ। ਔਰ 2 ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਸੀ 2 ਔਰ ਇੱਧਰ ਇਮੇਜ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 4। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੀਫਿकेशन ਤੋਂ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਆंसर ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਇਮੇਜ ਦਾ ਉਹ 2 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ दैट ਆਫ ਆਬਜੈਕਟ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਂਸਰਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਵਨ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਹਾਈਟ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟ, ਦੈਨ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ, ਦੋਨੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ। ਆਬਜੈਕਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ 15 ਗਿਵਨ ਸੀਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਂਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, सॉरी कन्वेक्स लेंस या कनकेव लेंस, ये कन्फ्यूजन नहीं रखनी कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो नेगेटिव की है हमेशा ही आएगा, सिर्फ फोकल लेंथ दे विच की है आपां नूं ध्यान रखना है कि लेंस केड़ा है। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव। लेंस फॉर्मूला यूज़ करन तो बाद अपने कोल जो वैल्यू आई वी दी, वी की सी इमेज डिस्टेंस आया +30 सेंटीमीटर। सो +30 सेंटीमीटर दे विच प्लस साइन का की मतलब है जो अपने कोल इमेज बन रही है वो किधर बनेगी, राइट साइड ऑफ द लेंस, और किन्ने डिस्टेंस ते बनेगी 30 सेंटीमीटर तक। सो इस तो बाद आप कैलकुलेट किया हाइट ऑफ इमेज। सो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लिखा h'/h एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू v/u, बिकॉज अपने को v की वैल्यू, u की वैल्यू और h की वैल्यू तीनों वैल्यू सीगियां। सो मैं इन्हों दोनों चीज़ों आमने सामने रख के की है, हजे मैग्नीफिकेशन की कोई गल नहीं की, सिर्फ इन्होंने दोनों इक्वल रख के मैं की है सब वैल्यूज़ पुट की और h' कैलकुलेट किया। h' है की है, h' है इमेज का साइज़। सो साइज़ अपने को आया नेगेटिव दे विच। नेगेटिव का की मतलब है प्रिंसीपल एक्सिस दे नीचे वाल बन रही है इमेज, सो दैट इज़ वाई अपने को हाइट की है नेगेटिव विच आ रही है। और कितनी हाइट की बन रही है 4 सेंटीमीटर्स, 4.0 सेंटीमीटर्स। और लास्ट में उन्होंने पूछा सी मैग्नीफिकेशन। सो मैग्नीफिकेशन का आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते सी, चाहे h'/h, v/u सेम ही चीज़ है। मैग्नीफिकेशन आई -2। सो जो भी मैग्नीफिकेशन दे विच आपां प्लस या माइनस साइन नूं देखिए, दैन प्लस साइन का की मतलब होंदा है वर्चुअल और इरेक्ट इमेज, और नेगेटिव साइन का की मतलब होंदा है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। सो इमेज की है रियल एंड इन्वर्टेड बिकॉज मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आई है। 2 आने का की मतलब है जो इमेज का साइज़ है वो 2 गुना है। सो 2 टाइम्स है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सिमिलरली आप इत्थों भी देख ही सकते हैं कि 2 × 2 4। सो ये अपना पूरा न्यूमेरिकल सी। सो ये तुहानूं की है होप करती हाँ कि काफ़ी सारे कंसैप्ट्स क्लीयर होए होणगे अबाउट कनकेव लेंस एज वैल एज कन्वेक्स लेंस। सो इस तो बाद एक होर टॉपिक है वो हुण आपां गल करते हैं, वो है पावर ऑफ लेंस। सो अपना अगला टॉपिक है और ऑलमोस्ट जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी कह सकते हैं वो है पावर या पावर ऑफ लेंस। सो जो लेंसेज ने चाहे कनकेव या फिर कन्वेक्स, उन्होंने विच जो कन्वर्जन हो रही है या जो डाइवर्जन हो रही है, सो जो रेज ने कन्वर्ज हो रही है नहीं या फिर डाइवर्ज हो रही हैं। सो वो एबिलिटी की है वो किस चीज़ से डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है फोकल लेंथ के उपर कि जो लेंस की फोकल लेंथ है वो कितनी है। सो फोकल लेंथ वेरी होएगी, वो नाल की है जो कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग प्रॉपर्टीज़ ने वो भी की है, या जो वो एबिलिटी है कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग एबिलिटी वो भी की है चेंज होएगी। सो अगर आप गल करिए एक कन्वेक्स लेंस की, कन्वेक्स लेंस के केस दे विच अगर फोकल लेंथ घट होएगी, फोकल लेंथ घट होने की वजह नाल की है जो रेज आ रही हैं वो उन्होंने की करेगा, कन्वर्ज करेगा, बिकॉज वो लेंस है ही कन्वर्जिंग लेंस। सो कन्वर्ज करेगा बहुत ही लार्जर एंगल्स के नाल रेज नूं की करेगा, बेंड करेगा, सो दैट जिहड़ी इमेज है वो ऑप्टिकल सेंटर के बहुत ही नज़दीक बनेगी। सो अगर शो भी करना होवे, सो अगर एक कन्वेक्स लेंस लईए जिहदी फोकल लेंथ आपां की है ज़्यादा नहीं लै रहे, सो अगर यदि फोकल लेंथ बहुत ही स्मॉल है, सो जो रेज आ रही हैं, सो आप सपोज करते हैं पैरेलल रेज का केस, बिकॉज आपां नूं पता है कि जो ये लेंस है कन्वर्जिंग लेंस है, सो ये रेज नूं की करेगा, कन्वर्ज करेगा अपॉन द फोकस। सो इस फोकस के उपर की है सारियां कन्वर्ज होंगियां। सो जो रे इनिशियली इस डायरेक्शन वाल जा रही सी उन्होंने कितना बेंड करना पिया, इन्ना सारा। सिमिलरली नीचे वाली रे नूं भी की है काफ़ी सारे लार्ज एंगल के थ्रू की है बेंड करना पिया, अगर की है अपने कोल फोकल लेंथ घट है। उसी तरह अगर फोकल लेंथ घट ना होने की बजाय ज़्यादा होवे, दैन ज़्यादा फोकल लेंथ सिमिलरली इधर भी पॉइंट थोड़ा इधर वाल शिफ्ट होएगा, दैन उन्हों की जो बेंडिंग होएगी वो की होएगी, घट होएगी। और सेम ही केस आप कनकेव के केस विच डिस्कस कर सकते हैं। कनकेव लेंस के केस दे विच की है जो रेज आणगियां वो डाइवर्ज हो रही हैं।
ਸੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਗਰ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਘੱਟ ਹੈ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਵਰਜਨ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਜੋ ਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਵਰਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਰਜ ਐਂਗਲ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਹੈ ਡਾਇਵਰਜ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਟੂ ਡਿਫਾਈਨ ਦ ਕਨਵਰਜਿੰਗ ਐਂਡ ਦ ਡਾਇਵਰਜਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਲੈਂਸਿਸ। ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਰ। ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਦ ਐਬਿਲਿਟੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦ ਐਕਸਟੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਐਕਸਟੈਂਟ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰੇਜ਼ ਜੋ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਲੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਐਕਸਟੈਂਟ ਤੱਕ ਕੀ ਹੈ ਕਨਵਰਜ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਇਵਰਜ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਦੈਟ ਐਕਸਟੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਪਾਰ ਆਫ ਲੈਂਸ। ਸੋ ਪਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਾਰ ਨੂੰ ਜਨਰਲੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, power is generally defined as the reciprocal of the focal length of the lens. So power is equal to 1 over focal length. Focal length. So ਹੁਣ ਅਗਰ ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ SI ਯੂਨਿਟਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਸੋ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੀਟਰਸ ਇਨ SI। ਸੋ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਮੀਟਰ, ਦੈਨ ਪਾਵਰ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਪਾਵਰ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ that are diopter, DIOPTRE, diopter, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ D ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਗਰ 1 ਡਾਇਓਪਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ 1 ਡਾਇਓਪਟਰ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ 1 ਓਵਰ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਆਏਗਾ 1 ਮੀਟਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ 1 ਓਵਰ 1 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਆਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਡਾਇਓਪਟਰ ਆਏਗਾ। ਸੋ 1 ਡਾਇਓਪਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਮੀਟਰ ਇਨਵਰਸ। ਸੋ ਅਗਰ 1 ਡਾਇਓਪਟਰ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 1 ਡਾਇਓਪਟਰ ਇਜ਼ ਦ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅ ਲੈਂਸ whose focal length is 1 meter। ਸੋ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ 1 ਡਾਇਓਪਟਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, is the power of lens whose focal length is 1 meter। ਸੋ ਇਹ ਹੈ 1 ਡਾਇਓਪਟਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਜੋ ਹੈ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਕਨਵੈਕਸ ਔਰ ਕਨਕੇਵ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਔਰ ਕਨਕੇਵ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਯੂਜ਼ਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੈਂਸਿਸ ਦੇ ਯੂਜ਼ਸ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੈਸੇ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਪੈਕਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਦ ਸਪੈਕਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਸ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੇ ਲੈਂਸ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਸਭ ਦੇ ਲੈਂਸਿਸ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਰੈਕਟਿਵ ਲੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਆਪਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਿਵ ਲੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ that is 2.0 diopter। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਪਾਰ, ਪਲੱਸ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਾਲ ਉਹ ਪਲੱਸ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਫ ਪਾਵਰ ਇਜ਼ ਪਲੱਸ 2.0 ਡਾਇਓਪਟਰ, ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਾਵਰ ਹੈ 1 ਓਵਰ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ। ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ 1 ਓਵਰ ਪਾਰ। ਸੋ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਲੈਂਸ ਦੀ, ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਹੋਏਗੀ 1 ਓਵਰ ਪਾਰ, 1 ਓਵਰ ਪਲੱਸ 2.0। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ 0.5, ਔਰ ਨਾਲ ਯੂਨਿਟਸ ਕਿਹੜੇ ਆਣਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ 1 ਓਵਰ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਡਾਇਓਪਟਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ 1 ਓਵਰ ਡਾਇਓਪਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, 1 ਮੀਟਰ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਨਾਲ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਮੀਟਰ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਦੀ ਆ ਗਈ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
फोकल लेंथ पॉजिटिव किस केस विच हुंदी है, कन्वैक्स लेंस दे केस दे विच। सो अगर कोई ऑप्टिशियन तुहानूं प्रिस्क्राइब कर रहा है ये वाला लेंस जिहदी पावर है +2.0 डायोप्टर, कुछ भी हो सकती है, सो मैं ये केस लिया है, दैन ओहदा की मतलब है आपां किहड़ा लेंस यूज़ करांगे, कन्वैक्स लेंस। सो सिमिलरली अगर पावर, अगर आपां नूं जो करैक्टिव लेंस उन्होंने प्रिस्क्राइब किया है वो है -2.5 डायोप्टर, दैन सिमिलरली आप ओहदी फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। फोकल लेंथ अगेन सेम ही फॉर्मूला है, 1/r इज इक्वल टू 1/-2.5, 0.0 ऊपर नेगेटिव विच आंसर आएगा, दैन कैंसलिंग कर सकते हैं, 5 2 ज़ 10, 5 5 ज़ 25, then 0.4 again 1/, डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर। सो अपने को फोकल लेंथ कितनी आ रही है, -0.4 मीटर। अगेन अगर आप देखिए फोकल लेंथ की है नेगेटिव है, दैन फोकल लेंथ नेगेटिव होने का मतलब है जो लेंस है, जो लेंस उन्होंने आपां नूं यूज़ करने लिए किया है वो किहड़ा लेंस है, वो लेंस है कनकेव लेंस। सो सिंपली अगर पार पॉजिटिव विच है दैन जो लेंस होएगा वो की होएगा कन्वैक्स लेंस, जो भी आपां नूं प्रिस्क्राइब किया गया है, या फिर अगर पार आपां नूं की है माइनस दे विच दसी गई है दैन जो लेंस होएगा वो की होएगा कनकेव लेंस होएगा। सो इस तो बाद आपां थोड़ी होर जनरल डिस्कशन कर लीए अबाउट द पार। हुण इस तो इलावा जो लेंसिज ने जरूरी नहीं है कि आपां सिर्फ एक लेंस ही यूज़ करते हाँ, मोस्ट ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स दे विच की हुंदा है, कॉम्बीनेशन ऑफ लेंसिज यूज़ किया जाता है। कॉम्बीनेशन ऑफ लेंसिज मीनस किन्ने सारे लेंस नूं आपस दे विच कॉन्टैक्ट दे विच रखिया जाता है। कॉन्टैक्ट विच क्यों रखिया जाता है, इस तरह की है उहदी मैग्नीफिकेशन इंक्रीज़ हुंदी है। सो जिहड़ा पूरा अपने को लेंस सिस्टम बन रहा है उहदी मैग्नीफिकेशन भी ज़्यादा होएगी और उहदी शार्पनेस भी ज़्यादा होएगी। कंटैक्ट विच रखण दे नाल जो उहदी पावर आएगी, सो जो पूरे लेंस सिस्टम की पावर आएगी उन्होंने आप किद्दां डिफाइन करांगे। मान लो आप 3 लेंस यूज़ किए हैं, एक दी पावर P1 है, एक दी P2 है, एक दी P3 है, दैन उन्होंने आपस ज्वाइन करन दे, ज्वाइन मीनस आपस कॉन्टैक्ट विच रखा है आप, दैन पूरे लेंस सिस्टम की पावर आप सिंपली किद्दां लिखते हैं बाय द एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम मीनस आप की है टोटल पावर लिखांगे सिंपली उन्होंने ऐड करके। सो इहदे नाल की है उहदी पावर भी की है एडअप हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। जिवें अपने को अगर 2 लेंसिज हैं, एक 2.0 डायोप्टर विद प्लस साइन, एक 0.5 डायोप्टर विद प्लस साइन, दैन टोटल पावर कितनी आ जाएगी अपने को, टोटल पावर ऑफ दैट लेंस सिस्टम विल बी प्लस 2.0 डायोप्टर एंड प्लस 0.5 डायोप्टर, सो प्लस साइन 2.5 डायोप्टर। सो ये आ गई पावर। सो जो ये लेंस सिस्टम हैं, लेंस सिस्टम की है कितने कितने यूज़ किए जाते हैं। जनरली जो आप कैमराज देखिए, कैमराज दे विच की है आजकल लेंस सिस्टम यूज़ होता है, वो की है किन्ने सारे लेंसिज आपस दे विच की है कंटैक्ट दे विच रखा जाता है, सो दैट जो अपने को शार्पनेस आए इमेज की ज़्यादा आए, मैग्नीफाइड व्यू आए, प्लस वो की है पावर भी की है इंक्रीज़ हुई होंगी है। सो इस तो इलावा जो टेलीस्कोप्स ने या जो माइक्रोस्कोप्स ने उन्होंने भी की है लेंस सिस्टम की वरतों की जाती है। सो लेंस सिस्टम दे विच अलग अलग लेंसिज ने यूज़ करके की है, मतलब यदी बहुत ज़्यादा यूसेज है आजकल की लाइफ के विच। सो ये नाल की है अपना ये चैप्टर खत्म हो रहा है। सो इस चैप्टर दे विच आपां रिफ्लैक्शन और रिफ्रैक्शन बेसिकली इन्हां गल्लां दी गल कीती, इन्हां चीज़ां दी गल कीती। सो सब तो पहले रिफ्लैक्शन बाय प्लेन मिरर्स, उस तो बाद आपां रिफ्लैक्शन देखा थ्रू स्फेरिकल मिरर्स। सो स्फेरिकल मिरर्स तो बाद आपां कुछ इमेज फॉर्मेशनस उन्हां दे केसिस डिस्कस कीते, दैन वही साइन कन्वेंशनस, मैग्नीफिकेशन, उहदे नाल रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। सेम ही चीज़ां आपां की है रिफ्रैक्शन दे विच कीतियां। रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन की, एक रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब जिहदे विच कुछ इंपॉर्टेंट अपने को रिजल्ट्स आए। उस तो बाद सिमिलरली आपां इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ लेंसिज पढ़िया, उसी तरह मैग्नीफिकेशन, साइन कन्वेंशनस, न्यूमेरिकल्स, और एंड पे जो एक बहुत छोटा जिहा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वो की सी पावर ऑफ लेंस वो डिस्कस किया। सो इस दे नाल ही अपना ये चैप्टर खत्म हो रहा है। सो नैक्सट लैक्चर दे विच आपां अगले चैप्टर की गल करांगे। अज लई इन्ना ही, थैंक यू।